Welcome back, everybody. Uh, Rim Jim, welcome back. Rahul, Ishika, God bless you. Thank you. Good afternoon. Shilpi, Zinia, good afternoon. Welcome back. Madhur, Jaspreet, Sat Sri Akal. Okay, Abhijit. Good afternoon. Gauri. Acha, okay. Jhansi mein. Okay. Welcome back. Bittu, Pooja, good afternoon. Welcome back, everybody. Kirandeep, good afternoon. Shilpi, I'm good. Thank you. Good afternoon, Vinayak. Sat Sri Akal, Prabjeet. Saurabh, good afternoon. Gur Kamal, good afternoon. Oh, wonderful, Chintu. I'm very happy to hear this. Wonderful. Do well. You're the best. All my students are the best in the country. Welcome back, Amiteshwar. Yes, Ritik. Can be addition or subtraction. बस दोनों कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं. Good afternoon, Arushi. अच्छा चिंटू ये होता है. My students in fact teach so many teachers. Welcome back, Palak, Niti, good afternoon. Praful, good afternoon. Oh, wonderful, Shilpi. I'm glad you did so well in your LLM entrance. Now, of course, this is just the beginning. अभी तो बहुत कुछ है. Welcome back, Shikha. Welcome back, Palkin, Ridhima. Welcome back. हाँ शिखा, even I also find बहुत कम time होता है. And I understand, that so many chores have to be finished in this time. मेरे को भी बस इतना ही टाइम मिलता है कि भागता हूँ. I have a quick cup of coffee so as to become alert. And वापस बस इतना ही टाइम होता है. Good afternoon, Shiraz. कोई बात नहीं रिधिमा. We can take turns. Pooja, I don't have my lunch. I normally have my morning breakfast. Then I have my early dinner. Bas. Sat Sri Akal, Kulveer. Taranam, good afternoon. Is that Lakshmi? Is that Lakshmi? Good afternoon. वाह वाह रिधिमा. सूप ही होता है मेरा. यस. Shrishti, good afternoon. Okay. No, no, no. You must not live to eat. We should eat to live.
and eat only the right things. Sanjay, good afternoon. Ashna, good afternoon. कभी भी कोई कम खाने से नहीं मरा जिंदगी में, ज्यादा खाने से प्रॉब्लम्स आती हैं. प्रदीप, गुड आफ्टरनून. थैंक यू चिंटू. ओके रिमझिम. कमल जी, आई आई लाइक मेनी कॉफीज. वैसे मैं मोरक्कोन कॉफी ज्यादातर पीता हूँ. आई गेट माई रेगुलर मोरक्को कॉफी, अच्छी मिल जाती है मुझे. सो नॉर्मली आई टेक दैट. हाँ कल, वो तो आज भी था, वो तो मैं यहाँ आ गया. Luckily, I said no, because I had in fact started 1/4 distance I had covered. See outside jurisdiction as section magistrate shall postpone issue summon such a case. No, he has already taken cognizance, Lavisha. And after taking cognizance, he feels he's called the summon. Or after taking cognizance, he believes that accused should not be called. तो बस उसमें वो cognizance ले चुका है. History of IPC, okay. Oh, Ruchika, blood money से शुरू. Wow. I know, I know. I told you, my students are the best in the country. कोई उनको टक्कर नहीं ले सकता. Oh, that कभी बताऊंगा. Okay, matcha tea. Okay. Normally I have मेरी वो लीफ टी होती है, दार्जिलिंग की आती है. हाँ मैं कर दूंगा राहुल, टेंशन मत लो. Yes, yes, Apratim. Yes. तनवीन, ये तो बहुत बेसिक है. मैंने जब आपको सेक्शन 167 यानी 187 बीएनएसएस कराया था, तो मैंने बहुत डिटेल में एक चीज बोली है. प्लीज गो टू माय दैट लेक्चर सो दैट यू गेट क्लियर. ओह अच्छा शिल्पी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. आई होप आपको अच्छी तरह लॉ आ गया होगा अब सारा. ओके चलिए, आई होप एवरीबॉडी इज ज्वाइन. लेट्स स्टार्ट नाउ. काफी देर हो गई. Yesterday we had started the topic of the charge. जहां तक चार्ज का सवाल है, you know, when we lodge an FIR or when the police finishes its investigation, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उन दोनों में क्या होता है? एक्यूजेशन. द वर्ड एक्यूजेशन इज यूज्ड. सो जो एफआईआर में एक्यूजेशन है या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करने के बाद फाइनल रिपोर्ट में जो लांछन लगाती है, उनको हम एक्यूजेशन कहते हैं. एक्यूजेशन के ऊपर अब जब कोर्ट अपना पहली बार अपना जुडिशियल माइंड यूज करती है, वो जुडिशियल माइंड क्यों यूज करती है? एक कंक्लूजन में आने के लिए. क्या कंक्लूजन उसको ड्रॉ करना है? ऑफेंस हुआ है क्या और किसने किया? दो चीजों के लिए. एक बार जब अपना माइंड यूज करती है कोर्ट, तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचती है, एक कंक्लूजन पे पहुंचती है. हां, ऑफेंस हुआ है और इसने किया है. कायदे से अगर नेचुरल जस्टिस ना होता तो यहीं पे सजा मिल जाती. पर क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, आपको सुने बिना हम आपको सजा नहीं दे सकते. इसीलिए जब मैंने अपना जुडिशियल माइंड यूज किया कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे या सुओ मोटो, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हां ऑफेंस हुआ है और इसने किया है, अगला स्टेप क्या होगा? मैं उस बंदे को बुलाऊंगा और कहूंगा कि तूने ये ऑफेंस किया है.
तुझे सजा क्यों ना दे दूं, उसका जवाब क्या होगा? अगर तो वो मानता है, कहेगा हाँ सर गलती हो गई, वहीं उसको सजा मिल जाएगी, सेंटेंस हो गया, मामला खत्म। बट अगर वो कहता है नो सर, आपने जो अपना जुडिशियल माइंड यूज किया और आप जो एक्यूज कर रहे हो मुझे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, कोर्ट कहेगा क्या चाहते हो? सर ट्रायल चाहता हूं। वहां से ट्रायल शुरू होता है। जो ये एक्यूजेशन लगाता है मैजिस्ट्रेट, उसको एक्यूजेशन नहीं कहेंगे। As per the definition given in the definition clause, it is called a charge. So charge क्या होता है? एक एक्यूजेशन जो मैजिस्ट्रेट लगाता है अपना जुडिशियल माइंड यूज करने के बाद। किस पर्पस के लिए यूज करता है? ताकि वो एक्यूज को बुला के उसको वो एक्यूजेशन सुना सके और ये कह सके कि मैं तो कन्विंस हो गया हूं, मेरे को गलत प्रूव कर सकता है तो कर दे, यानी कि मेरे 50% रेडी है, तुमने मुझे गलत प्रूव करना है तो मैं तुम्हें मौका देता हूं, जो जो एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ है मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उनको अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, और अगर तुम्हारे कोई एविडेंसेस हैं तो वो भी ले आओ, दोनों सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुमने किया है कि नहीं किया। दिस इज द व्हाई ऑफ अ चार्ज। सो चार्ज क्या होता है? इट इज एक्यूजेशन मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट आफ्टर applying his judicial mind to either the police report or a complaint or a suo motu action. एक बार ये चीज क्लियर होगी तो क्वेश्चन ये उठता है कि शुरू में मैंने चार्ज लगा दिया और चार्ज लगाने के बाद में चेंज हो गया। सपोज एक 304A का मामला है, कोई एक्सीडेंट का मामला है, डेथ बाय एक्सीडेंट, और अब मुझे ड्यूरिंग ट्रायल पता चलता है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मर्डर है, तो क्या मैं 304A को ऑल्टर करके 302 लगा सकता हूं? यस। और सपोज उल्टा ले लो, 302 में मैंने केस दर्ज किया है और अब पता चलता है नहीं 302 नहीं, ये तो एक्सीडेंट है, क्या मैं उसको रिड्यूस करके 304A बना सकता हूं? यस, बना सकता हूं। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, चार्ज जो आज की स्थिति है, जो आज का रॉ मटेरियल है, उस पर मैं चार्ज लगाता हूं। कल को अगर हालात चेंज हो जाए तो मैं चेंज कर दूं। इसीलिए याद रखना कि कई चीजें निकलती हैं ड्यूरिंग ट्रायल। पहला एक आया, उसने बोला जी ऐसा ऐसा हुआ था, दूसरा पीडब्ल्यू आया, प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ था। एज ए रिजल्ट मुझे अब पता चला अरे ये तो गन भी लेके आया था और गन भी अनलाइसेंस थी, ये तो पहले नहीं आई थी पॉइंट, अब आ गया, तो मैं ऐड भी कर सकता हूं, मैं ऑल्टर भी, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, कम भी कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं, पर मैं सिर्फ कैंसल नहीं कर सकता। मैंने कल बताया था कि सीपीसी और सीआरपीसी में ये सबसे बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? कि सीपीसी में फ्रेमिंग ऑफ इशू होता है और फ्रेमिंग ऑफ इशू होने के बाद उसको मैं ऑल्टर भी कर सकता हूं, ऐड भी कर सकता हूं और कैंसल भी कर सकता हूं। क्रिमिनल लॉ में मैं कैंसल नहीं कर सकता। मुझे लॉजिकल एंड में जाना है, हाँ मैं उसको इक्विट कर सकता हूं। एक बार मैंने चार्ज लगा दिया, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता, इशू लगाने के बाद मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं। ये बेसिक फर्क है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम का। अब एक चीज और है, इशू सीपीसी में और चार्ज सीआरपीसी में।
जब भी मैं इशू फ्रेम करता हूं या चार्ज फ्रेम करता हूं, इसका मतलब है मैं तो कन्विंस हूं, और क्योंकि मैं कन्विंस हूं आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपको मैं सजा दे दूं क्या? आप कह रहे हो कि नहीं, आप गलत हो, और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आप गलत हो। जो जो एविडेंसेस के ऊपर आपने अपना दिमाग लगाया है उनको मैं तोड़ दूंगा कि वो गलत एविडेंसेस थे। इसीलिए प्लीज रिमेंबर वन थिंग, कि जो ट्रायल होता है वो सिर्फ जो मैंने इशू फ्रेम किए हैं सीपीसी में या चार्ज फ्रेम किए हैं सीआरपीसी में, उन्हीं पे होता है। हाँ, मैं ऐड कर सकता हूं, सीपीसी में मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, सीआरपीसी में मैं ऐड कर सकता हूं, ऑल्टर कर सकता हूं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? दोज हु मिस्ड? ओके, नाउ एक बार हमें ये पता चल गया कि चार्ज क्या है, अब नेचुरली अगला क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज होता क्या है। जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम सब्सटैंटिव लॉ पढ़ते हैं, तो सब्सटैंटिव लॉ में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं हम, कि एक ऑफेंस के दो हिस्से होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट प्रोहिबिटेड, रियस का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। तो वो एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, हर एक्ट अलग लिखा हुआ है जो प्रोहिबिटेड है। अगर मैं ऑफेंस की डेफिनेशन में जाऊं तो सीआरपीसी में दी हुई है या जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई है, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ। जब मैं कहता हूं एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हर वो एक्ट जो लॉ मना करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे ऑफेंसेस एक जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक मुक्का मार रहा हूं, तो मैंने जब मुक्का बनाया, आपको डराया, मारूंगा मैं, असॉल्ट। और जब मैंने आपकी तरफ घुमाया, आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने के लिए मुक्का दिखाया, तो असॉल्ट के साथ साथ आपके माइंड में डर पैदा हुआ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी हो गया, और अब मैंने मुक्का मार ही दिया। अब 3 एक्ट सीरियस हुए हैं। एक मुक्का मारने के अंदर 3 चीजें हुई हैं, पहला असॉल्ट, दूसरा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और तीसरा पेन हुआ, यानी कि हर्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि यार एक ही लगा दो ना, एक ही तो मुक्का मारा है ना। ये एक मुक्का मारने में 3 ऑफेंसेस जुड़े हुए थे, इसलिए 3 ऑफेंसेस ट्राई होंगे आप। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें परिभाषाओं में जाना है, डेफिनेशंस में जाना है, और उन डेफिनेशन में अगर कोई ऑफेंस आता है इंडिपेंडेंटली, चाहे वो एक ही एक्शन का पार्ट हो, वो अलग अलग है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? नाउ वंस हैविंग वी आर क्लियर ऑन दिस, अब आता है आखिरी पॉइंट। क्रिमिनल लॉ में हर एक्टस रियस, और अब मैं वर्ड यूज करूंगा हर चार्ज, हर एक्टस रियस पे अलग चार्ज लगता है, हर एक्टस रियस का अलग एक्यूजेशन होता है, हर एक्टस रियस को अलग ट्रीट करना है। इसीलिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, कहता है एवरी चार्ज मस्ट बी treated separately, every charge must be tried separately, every charge must be punished separately. Clear हो गया? Must be treated separately, must be tried separately, must be punished separately.
अब सपोज मैं यही एक बात बताऊं कि मैं मुक्का मारने के लिए आपको बोला मुक्का मारूंगा तेरे को, और आप डर भी गए, तो मुक्का मैंने दिखाया असॉल्ट, डराया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और फिर मैंने मार दिया। तो आप सोचो 3 अलग केस चलेंगे। पहला मुक्का दिखाने का असॉल्ट, फिर मैंने डराया उसका अलग, और फिर मैंने मारा उसका अलग। कितना कम्बरसम हो जाएगा ना। इसीलिए सीआरपीसी और अब बीएनएसएस एक सहूलियत देता है, एक कन्वीनियंस देता है। क्या? कि ऑल चार्जेस मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली, ऑल चार्जेस मस्ट बी पनिश सेपरेटली। बट अगर एक ही ट्रांजैक्शन है, ऑल चार्जेस मे बी ट्राइड टुगेदर। तो जो हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस, वो सीआरपीसी की या बीएनएसएस की क्रिएशन है। सो आज के दिन में सीआरपीसी अगर ना होती तो 3 केस बनते, एक असॉल्ट का, एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, और एक हर्ट का। अब क्या है, एक ही केस में हम तीनों ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं थैंक्स टू सीआरपीसी। अगर ये ना होता तो हमें अलग अलग केस चलाने पड़ते। तो आज के दिन में सीआरपीसी बनने के बाद या बीएनएसएस बनने के बाद हम क्या कहेंगे? ऑल चार्जेस मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली, ऑल चार्जेस मे बी ट्राइड टुगेदर, बट ऑल चार्जेस मस्ट बी पनिश्ड सेपरेटली। व्हेन आई से पनिश सेपरेटली, सपोज एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मैं आपके घर आपको मर्डर करने आता हूं। पहले हाउस ब्रेकिंग हुई, फिर आपके मैंने सर्वेंट के दांत तोड़ दिए, फिर मैंने आपको गोली मारी, 3 ऑफेंस हो गए। सपोज पहले ऑफेंस की आप मुझे देते हो 3 साल, दूसरे ऑफेंस की देते हो मुझे 5 साल, और तीसरे ऑफेंस में देते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये थोड़ा हम कहेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सारे आ गए, चलो जी छोड़ो, या एक ही फाइन दे देता हूं तीनों को मिला के 1 लाख रुपया। नहीं, असॉल्ट का या सॉरी हाउस ब्रेकिंग का 5,000 10,000 रुपया, ग्रीवियस हर्ट का 20,000 रुपया, मर्डर का 1 लाख रुपया। अलग अलग पनिशमेंट दोगे, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी पनिशमेंट्स मर्ज नहीं होती। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। जो आपने मिस किया तो मैंने थोड़ा एक निचोड़ दिया है कल जो आपने मिस किया। अब इस चीज को बैकग्राउंड में लेते हुए, और कीपिंग दिस इन द बैकग्राउंड, now we go on to the Bear Act. हाँ निधि, मैंने पढ़ाया था ये उस दिन, आप देखिए उस लेक्चर में जाइए। कंसेक्टिव या कंकरेंट का लॉ मैंने कराया है, और जो बीएनएसएस में चेंज हुआ है। ओके, द चार्ज टाइटल है चैप्टर 18 का। चार्ज वर्ड, जैसा कि मैंने बोला, इट इज ओनली कनेक्टेड विद द कोर्ट। इसका मतलब है एक्यूजेशन इन एन एफआईआर, एक्यूजेशन इन अ पुलिस रिपोर्ट आर नॉट चार्जेस, दे आर mere accusations. चार्ज क्या होता है? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, आफ्टर यूजिंग माय जुडिशियल माइंड, जो अब मैं एक्यूजेशन लगाता हूं ताकि उस पर ट्रायल चला सके, अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो उसको हम चार्ज कहते हैं। चलिए, नाउ वंस वी आर क्लियर ऑन दिस, चलिए अब देखते हैं फॉर्म ऑफ चार्जेस। ए 211 has become 234 BNSS. Let's go on to this. Every charge under this Sanhita shall state the offense with which the accused is charged. हर चार्ज का पहला हिस्सा होगा कि उस ऑफेंस का नाम, तो हमें डिटेल बताना पड़ेगा आपके खिलाफ ये चार्ज है, आपने ये ऑफेंस किया है। अब कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका नाम है, फॉर एग्जांपल मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट,
नाम है, तो जहां नाम है तो वहां नाम से बताएंगे. Subsection 2, if the law which creates the offense gives it a specific name, the offense may be described in the charge by that name only. तो हमें अब और डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. यू आर चार्ज विद मर्डर, बस खत्म. अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो फिर उस ऑफेंस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी. यू आर चार्ज विद दिस, दैट यू हैव डन दिस 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 दिस. तो जहां नाम है वो तो सिंपल नाम आ जाएगा, जहां नाम नहीं है. So if the law which creates the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged. फिर उतना हिस्सा हम देंगे उसको जिससे accused को क्लियर हो जाए कि मैं फेस क्या कर रहा हूं, मैं मेरे खिलाफ चार्ज क्या है. उसके बाद कौन सा लॉ है, आईपीसी है कि कोई स्पेशल लॉ है, वो बताना है. और उसका सेक्शन क्या है ये भी बताना पड़ेगा. The law and the section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge. Next, the fact that the charge is made is equivalent to the statement that every legal condition required by the law to constitute the offense charge was fulfilled in the particular case. जब भी मैं कोई चार्ज बनाता हूं तो ये एक चीज प्रिजम्पशन के साथ चलेगी. प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ये है कि जो जो उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं. सो जब भी मैं कोई चार्ज लगाता हूं तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूं कि सारे इंग्रेडिएंट्स उस चार्ज के जो ऑफेंस है वो पूरे हो रहे हैं. द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया हुआ है. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द चार्ज? It is always the language of the court. Subsection 7. If the accused, having been previously convicted of any offense, is liable by reason of any such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award the subsequent offense, the fact, date, and place of the previous conviction shall be stated in the charge. And if such statement has been omitted, the court may add it at any time before the sentence is passed. Subsection 7 डील करता है कि जहां कोई आदतन कोई अपराधी है और अब हम उसको, सपोज एक चोर है, वो चोरी से बाज नहीं आता, हम उसको अब अंडर 75 आईपीसी उसको हम एनहांस पनिशमेंट देना चाहते हैं. तो नेचुरली पहले हमें पुराना जजमेंट बताना पड़ेगा. तो आप चाहे वो जो पुराना जजमेंट था, जो सारा डिटेल्स है, चाहे तो चार्ज में दे दो. और अगर आपने चार्ज में पुराना कन्विक्शन और सारे डिटेल्स नहीं दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या पता इसमें एक्विट हो रहा हो. तो नॉर्मली पीपी क्या करते हैं, वो चार्ज में नहीं देते. वो जब उसका कन्विक्शन होता है, जब सेंटेंस पे बात होती है, तब वो कहते हैं सर प्रीवियस कन्विक्शन भी है. और ये चीज अलाउ करता है ये सबसेक्शन. तो प्रीवियस कन्विक्शन में अगर आपने ऐड करना है ताकि एनहांस पनिशमेंट मिले, आपके पास दो विकल्प हैं. यू कैन आइदर ज्वाइन इट हियर इन द चार्ज एंड यू आर हियर बाय चार्ज विद सेक्शन 75 आईपीसी फॉर एनहांस पनिशमेंट बिकॉज यू आर अ हैबिचुअल ऑफेंडर इन दिस मैटर. और अगर आपने चार्ज में नहीं देना, फाइन, देन यू गिव इट एट द टाइम ऑफ सेंटेंस, कभी भी दे सकते हैं. अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशंस. 4 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं. ओके, सो मेनी जिनिया, बहुत है. आप आईपीसी खोल के देखो, 80% आर नॉट नेम्ड. ओके, नाउ दैट वी गो टू इलस्ट्रेशंस. पहला इलस्ट्रेशन, A is charged with murder of B. This is, जब मैं कहता हूं आई एम चार्जिंग यू विद मर्डर, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट A's act fell within the definition of murder under sections 100 and 101 of BNS, and it did not fall under any of the 5 general exceptions, nor does it fall in any of the general exceptions. यानी कि जब मैं कहता हूं आई एम चार्जिंग यू फॉर मर्डर, इसका मतलब क्या हो गया
कि तुम्हारा एक्ट, जो हमारा पुराना 300 मर्डर का सेक्शन था, उसके 4 क्लॉजेज में आ रहा है, 5 एक्सेप्शन में नहीं आ रहा और जनरल एक्सेप्शन में नहीं आ रहा. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. बी, is charged with section 118 of BNS, which corresponds to grievous hurt, 326, with voluntarily causing grievous hurt to B by means of an instrument for shooting. This is equivalent to statement to the case that it was not provided for by section 122. इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं कहता हूं that I am charging you for grievous hurt, it means you are not being covered by causing grievous hurt under grave and sudden provocation. क्योंकि grave and sudden provocation में इतनी सजा कम हो जाती है. तो जब मैं, अगर मुझे करना होता कि नहीं, इट इज योर एक्ट इज अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो मैं आपको 118 की जगह सीधा ही 122 में लेके जाता. तो मैं उसमें नहीं. तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपको मैं 118 में चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब है 122 लागू नहीं हो रहा आप पे. Illustration C. A is accused of murder, theft, cheating, extortion, adultery, or criminal intimidation or using a false property mark. The charge may state that A committed murder or cheating or theft or extortion or adultery or criminal intimidation without reference to the definition of those crimes. जहां पे नाम है वहां नाम काफी है, तो अब मुझे उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. यानी कि ऐसे मामलों में मुझे ये नहीं लिखना कि चीटिंग विच मीन्स दैट ओके 415 डिफाइन करता है ना, डेफिनेशन देनी. तो जहां पे नाम है चीटिंग बस काफी है, मर्डर काफी है. गॉट इट? सो मुझे अब इनकी डेफिनेशंस देने की जरूरत नहीं है. ओके. Illustration C. D. A is charged with section 219 with intentionally obstructing a sale of property offered by sale by a lawful authority of a public servant. अब जहां मैंने कह दिया कि 184 में मैं तुम्हें चार्ज कर रहा हूं, अब यहां डेफिनेशन है नहीं कोई, तो हम क्या लिखें? ये डील क्या करता है कि कोई अगर पब्लिक ऑक्शन करा रहा हो पब्लिक सर्वेंट, उसमें बाधा डाले, अब मुझे लिखना पड़ेगा कि फलां फलां तुम्हारी पब्लिक ऑक्शन हो रही थी, तुमने यहां आके इस पब्लिक सर्वेंट को बाधा डाली. अब डिटेल लिखना पड़ेगा. क्यों? 184 का कोई नाम नहीं है. तो जीनिया जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका जवाब आ गया. चलिए, आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर ऑन दिस सेक्शन. ओके, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, वी नाउ गो ऑन टू सेक्शन 212, जो अब बन गया है 235, 235. The charge shall contain such particulars as to the time and place. अब चार्ज में क्या क्या होगा? पहले क्या होगा? नाम लॉ का, सेक्शन लॉ का, और अगर कोई नाम दिया हुआ है तो उसका नाम, जो ऑफेंस का नाम, और अगर नहीं दिया हुआ तो फिर हमें डिटेल लिखना पड़ेगा. इसके अलावा और क्या होगा? टाइम, प्लेस, कहां हुआ, तभी तो जुरिसडिक्शन डिटरमिन होगा. दूसरा टाइम क्या है, कौन से कितने बजे हुआ, एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम, और किसके किसके खिलाफ हुआ और किसने किया. और अगर पर्सन के खिलाफ नहीं, प्रॉपर्टी ऑफेंस है, तो कौन सी प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ. एज अ रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव एक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर. हाउएवर ये इतना क्लियर होना चाहिए ताकि एक्यूज को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. नो कंफ्यूजन शुड रिमेन. सो बेसिकली हमने क्या क्या देखना है? पहला हमने क्या देखा पिछले सेक्शन में, कौन से लॉ में कौन सा सेक्शन, उस सेक्शन का अगर नाम है तो नाम, और दूसरा अगर नाम नहीं है तो उसका डिटेल. इसके अलावा कहां हुआ, किसने किया, किसके खिलाफ किया, अगर बंदा नहीं तो किस प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ, और किस टाइम पे हुआ. When the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum, or as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed,
and the dates between which the offences are alleged to have been committed without specifying particular items or exact dates, and the charge show framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 242. इसका मतलब क्या है कि जहां पे हम बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की, अब सपोज कोई गबन कर रहा है, मैंने अपने अकाउंटेंट को पकड़ा, आज मैंने देखा कि 5 लाख रुपया मिसिंग है। अब मुझे नहीं पता कब से इसने शुरू किया हुआ, अब जरूरी हो सकता है कि 5 साल से कर रहा हो ये। पहले महीने उसने 10,000 रुपये निकाला, फिर उसने निकाला 1 लाख रुपया, फिर उसने निकाला 2,000 रुपया। अब इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है चार्ज में, मोटा मोटा बताना है कि पिछले 5 साल में 5 इयर्स में तूने 5 लाख रुपए निकाला है, बस। तो बड़ा कंबरसम है ना ये, कैसे प्रूव, ये तो बहुत डिटेल में चलेंगे। नहीं, सितंबर में तूने 2,000 निकाला था, अक्टूबर में 10,000 निकाला था, तो ये चीजें चार्ज में नहीं आएंगी। तो जहां तक पैसे का मामला होता है या मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो राउंड फिगर में दे देते हैं, राउंड फिगर में टाइम एंड राउंड फिगर में पैसे की क्वांटिटी या मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। नाउ दिस इज बेसिकली रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस। यू कांट एक्सपेक्ट, कई बार तो पुलिस भी पकड़ नहीं पाती कि पता नहीं 2,000 कब निकाला इसने। हमें टोटल पता है कि 5 लाख रुपए का गबन हुआ है, इस पीरियड में हुआ है, पहले का गबन हुआ, अब नहीं पता चल रहा कब कब निकाला इसने। कोई बात नहीं, हम इतना लिख देंगे पिछले 5 साल में तूने 5 लाख का गबन किया। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। Provided that the time included between the first and last of such dates shall not exceed 1 कह रहा हूं वो नहीं है, ये जो 1 साल, यानी इस जनवरी से लेकर इस फरवरी तक तूने 1 लाख निकाला, पिछले साल जनवरी से लेकर फरवरी तक तूने 2 लाख निकाला, उससे पहले जनवरी से लेकर फरवरी तक, उससे पिछले साल तूने 3 लाख निकाला, टोटल 5 लाख बन गए। सो बेसिकली कोई 5 लाख ऐसे भी 10 साल भी क्यों ना कर दो, ऐसे 20 साल ही क्यों ना कर दो, नहीं, 1 साल सेंसिबल है, रीजनेबल है। तो 1 साल के अंदर अब मुझे ये नहीं बताने की जरूरत जनवरी में तूने 3 बार निकाला, फरवरी में तूने नहीं निकाला, तो तूने जनवरी टू दिसंबर सॉरी, तो अब तूने मार्च में इतना निकाला, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आप पूरा एक कितने साल का कर सकते हो, तो 1 ईयर, 1 साल में जितना भी टोटल निकला है उतना ही। तो आई नीड नॉट गिव द डिटेल्स, मार्च में इतना, मई में इतना, वगैरह वगैरह वगैरह, टोटल 1 साल में इतना, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। वी नाउ गो टू सेक्शन 213 which now corresponds to section 236. When the nature of the case is such that particulars mentioned in sections 234 and 235 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also give particulars of the manner in which alleged offence was committed, as will be sufficient for that purpose. अगर बाई चांस जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एक्यूज को क्लियर नहीं हो रहा तो फिर डिटेल देने जरूरी है। इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, A is accused of a theft of a certain art at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which the theft was effected. तुम्हारे पे चार्ज है, तुमने मोनालिसा चुराई है, फ्रेंच म्यूजियम में जाकर तुमने चुराई है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने पहले दरवाजा तोड़ा, फिर तुमने ये अलार्म ऑफ किया, तब तुमने चोरी की। डिटेल मोडस ऑपरेंडी को लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? उसको पता है मोनालिसा एक ही है पूरी दुनिया में,
कि तेरे पे चार्ज है, तूने मोनालिसा को चुराया, वो काफी है। आगे चलते हैं। बी इज एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब ए को कहते हैं तूने बी को चीट किया, वो कहता कैसे, क्या किया है मैंने, अब बताना जरूरी है। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। सो जहां पे एक्यूज को क्लियर ना हो तो अपना डिफेंस कैसे करेगा। तू मुझे चीट कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन आप ये नहीं पूछते कैसे, क्या किया मैंने, ये आपको क्लियर नहीं है। सो जहां क्लियर नहीं है, नेचुरल जस्टिस डिमांड्स कि उसको क्लियर करना जरूरी है। सी is accused of giving false evidence at a given time and place. The charge must set out that portion of giving the evidence which was given to be alleged to be false. एक को कहा तूने झूठी गवाही दी है, वो कहेगा जी कहाँ दी है, मैंने 10 पेज की गवाही दी है, पहला पेज खोलो, दूसरा पेज खोलो, तीसरा पेज खोलो, कहीं झूठ नहीं है। वो कहेंगे नहीं, 8वें पेज पे जो ये पैरा है ये झूठा है तेरा, अब बताना जरूरी है। सिंपल कहना कि तूने झूठी गवाही दी है, कैसे, कहां। तो जब मैं कहता हूं झूठी गवाही दी है तो मुझे बताना पड़ेगा वेयर, एट विच पॉइंट ऑफ टाइम, कौन से पेज में आप बता रहे। नेक्स्ट is accused of obstructing B, a public servant, in the discharge of his public functions at a given time and place. अब मैंने बोला तूने इस पब्लिक सर्वेंट को रोका है, ऑब्स्ट्रक्ट किया, वो कहेगा जी कैसे किया बताओ। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड बी। तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो जब तेरे घर आया था तो तूने फिर उसको रोक लिया, उसका कॉलर पकड़ लिया, या तूने उसके ऊपर ईंटें फेंकी थी। अब ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जो अब ये ऑफेंसेस में अब आप सिर्फ कह दिया यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड मी, कैसे, क्या किया मैंने। तो जहां पे कोई रूम गुंजाइश का रहता है कि क्लैरिटी ना हो, वहां पे क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। क्या क्या डिफेंस लाऊंगा मैं। ई A is accused of the murder of B at a given time and place. अब बताने की जरूरत नहीं है। The charge need not state the manner in which A murdered B. A तुमने B का मर्डर किया, तुमने उसको चाकू मार के किया, तुमने उसको गोली मार के किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। You have murdered B, enough, काफी है। F. A is accused of disobeying a direction of law with an intent to save B from punishment. अब ए को कहते हैं तुमने लॉ तोड़ा है ताकि बी को तुम बचा सके। वो कहेगा जी कौन सा लॉ तोड़ा है, कहां तोड़ा है, क्लियर करो मुझे। सो जो जो चीज क्लियर करे बिना एक्यूज अपना डिफेंस नहीं ला सकता, वहां पे क्लियर करना जरूरी है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। वी नाउ गो ऑन टू सेक्शन 214 which corresponds to section 237. In every charge, words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which the offense is punishable. अब क्या होता है हर लॉ में जो वर्ड्स यूज होते हैं, चार्ज में अगर हम वही वर्ड यूज कर रहे हैं तो उनका वही मीनिंग होगा जो लॉ में होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने हर्ट वर्ड यूज किया, तो हर्ट का मीनिंग क्या है, कॉजिंग बॉडीली पेन या कॉजिंग एनी इंजरी बिकॉज ऑफ एनी कोई बीमारी फैलाना। तो उस केस में जो मीनिंग उस लॉ में होता है वो मीनिंग ऑटोमेटिकली माना जाएगा। या अगर मैं वर्ड यूज करता हूं गुड फेथ, योर एक्ट वाज नॉट इन गुड फेथ। अब आईपीसी का गुड फेथ डिफरेंट है जनरल क्लॉजेज एक्ट से, तो ठीक है, तो अब मैं कौन सा गुड फेथ यूज करूंगा जो आईपीसी में या बीएनएस में यूज हुआ होगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। सेक्शन 215 corresponds to section 238, इफेक्ट ऑफ एरर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अगर मैंने बाई चांस गलत डाल दिया चार्ज, या मैंने चार्ज लगाया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। हमेशा याद रखना कि
इवन अगर मैं चार्ज लगाना भूल गया और एक्यूज ने जानते हुए कि आप भूल गया, वो अपना डिफेंस देता जा रहा है उस चार्ज पे जो मैंने नहीं लगाया, या मैंने झूठा कोई गलत चार्ज लगा दिया जो पर वो सही चार्ज का जवाब देता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, याद रखना, एनी रॉन्ग चार्ज और एनी नो चार्ज will per se not be fatal to a trial unless it causes prejudice to the accused. इसीलिए ये चीज को जब हम सेक्शन 464 सीआरपीसी में आते हैं, ये चीज क्लियर करता है कि नॉन फ्रेमिंग और रॉन्ग फ्रेमिंग will have no effect on the trial unless it causes serious prejudice to the accused. इस चीज को दिमाग में रखते हुए ये सेक्शन पढ़ते हैं। नो एरर stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage to be material. कोई फर्क नहीं पड़ेगा unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice. So जब तक accused misled नहीं हुआ नॉन फ्रेमिंग से या रॉन्ग फ्रेमिंग से और उसकी वजह से बहुत बड़ा अन्याय हो गया उसके साथ, तब तक नॉन फ्रेमिंग और रॉन्ग फ्रेमिंग विल हैव नो इफेक्ट। इसको क्लियर करने के लिए हमारे को 5 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। लेट्स गो थ्रू दोस 5 इलस्ट्रेशंस। पहला, A is charged under section 180 of BNS with having in possession a counterfeit coin, having known at the time when he became possessed that such coin was counterfeit. The word fraudulently being omitted in the charge. तुम्हारे पास एक नकली नोट है, मैंने चार्ज में जो वर्ड है फ्रॉडलेंटली पोजेसेस। फ्रॉडलेंटली का मतलब क्या हो गया? अगर हम फ्रॉडलेंटली की डेफिनेशन में जाएं, विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड करने के पर्पज से। अब मैंने फ्रॉडलेंटली वर्ड भूल गया, मैंने नहीं लिखा, क्यों, जो भी कारण था मैंने नहीं लिखा। Unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error will not be regarded as material. अब उसको पता है मैं मेरे पास क्या चार्ज है, वो अपनी डिफेंस भी दे रहा है, तो मियरली क्योंकि मैं फ्रॉडलेंट वर्ड लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, चलेगा। B, A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge or is set out incorrectly. अब मैंने इतना लिख दिया कि तूने बी को चीट किया, कैसे चीट किया मैंने नहीं लिखा, भूल गया मैं। बट ए को पता है कि क्या चीज मैं डिफेंड कर रहा हूं, तो चाहे मैं भूल गया डिटेल लिखना, ए को पता है कि क्या चीज है, वो अपना डिफेंस भी ला रहा है उसी मुताबिक। ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, कॉल विटनेसेस एंड गिव्स हिज ओन अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. या तो होता ना कि उसको पता ही ना होता कि मैं क्या करूं जी, किस चीज को मैं डिफेंड करूं, वो अपना डिफेंस लाता जा रहा है, यानी कि उसको पता है। तो जब उसको पता है तो आप लिखना भूल भी गए तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। दैट इज वाई प्लीज मेंबर, हाँ, अगर मैं अब अपना डिफेंस ना लाता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सी चीटिंग की बात कर रहे हो, तो फिर ये प्रेजुडिस हो जाता है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। चलिए हम चलते हैं इलस्ट्रेशन डी। ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ खुदा बख्श on 21 January 2023. In fact, murdered person name was Heather Baksh, and the date of the murder was 20th January 2023. ए को कहते हैं तूने 21 जनवरी 2023 को
खुदा बख्श का मर्डर किया। मर्डर हुआ था वो 21 को नहीं हुआ, 20 को हुआ था। और मरने वाले का नाम भी खुदा बख्श नहीं था, हैदर बख्श था। मैंने अपने चार्ज में लिख दिया 21 जनवरी को जो खुदा बख्श का मर्डर हुआ उसको चार्ज कर रहा हूं मैं तुम्हें। ए वॉज नेवर चार्ज विद एनी मर्डर बट वन। और कोई चार्ज मैंने ए पे लगाया नहीं। And one had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively as Hyder Baksh. The court may infer from the fact that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. प्री ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में वो सुनता जा रहा है, अपना डिफेंस भी ला रहा है। मरने वाले का नाम गलत लिख दिया मैंने, डेट भी एक दिन गलत डाल दी, पर वो तो उसको तो पता है ना, वो तो अपना सही ला रहा है, वो तो खुदा बख्श के मुताबिक ही ला रहा है और वो 20 के मुताबिक अपने एविडेंसेस ला रहा है। फाइन, ये गलती भी अगर हो गई तो जहां पे रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पता है वो क्या असलियत क्या है, रॉन्ग फ्रेमिंग का भी कोई असर नहीं होगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। इसका अब एंटीथीसिस लेते हैं, अगला इलस्ट्रेशन इसी से जुड़ा हुआ है, इसी का कंटिन्यूएशन है। चलिए देखते हैं अगला। A was charged with murdering Hyder Baksh on 20th January 2023। और एक और खुदा बख्श भी था जो पुलिस वाले का नाम था, जो उसको गिरफ्तार करने गया था। अब कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑन 21 जनवरी, तो हैदर बख्श को मर्डर किया उसने 20 जनवरी को, खुदा बख्श पुलिस वाले का नाम था, उसको गिरफ्तार करने गया, उसका मर्डर कर दिया उसने 21 जनवरी को। अब हैदर बख्श की जगह खुदा बख्श का नाम आ जाता है और खुदा बख्श की जगह हैदर बख्श का नाम आ जाता है। अब तो मैं ही कंफ्यूज हो गया एज एन एक्यूज्ड। अब तो भैया तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। नाउ द कोर्ट में इन्फर दैट ए वाज मिसलेड एंड द एरर वाज मटेरियल। आई होप सबको क्लियर हो गया कि एरर कब मटेरियल होता है और कब मटेरियल नहीं होता। सो नॉन फ्रेमिंग और रॉन्ग फ्रेमिंग of a charge per se does not vitiate a trial. It is only if prejudice is caused to the accused. When can I say that prejudice is caused to an accused? Even if wrong facts were written in a charge, but the accused knew what he was facing and he was accordingly bringing his evidences, even though the charge was wrongly framed, it would not vitiate a trial. But conversely, if because of the wrong framing, wrong names, he was bringing wrong evidences, then it would be a serious defect which is not curable. चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 216 जो अब बन गया है हमारा 239 बीएनएसएस। कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे हालात चेंज हो जाते हैं। सो एनी कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आया। यू कैन ऐड और ऑल्टर, रिसेंड नहीं कर सकते, कैंसल नहीं कर सकते। कब कर सकते हो? आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई उसके बाद भी कर सकते हो, कर सकते हो, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई। आप देखते हो ना कई बार वो कहता है ओके मैं आप जजमेंट प्रोनाउंस करता हूं, मेरी नजर में वो कहता है रुकिए जज साहब मैं आ गया, ये गलत ये, और वो सारे कहानी चेंज हो जाती है। वो अलाउड है, वो लीगली अलाउड है। सो प्लीज रिमेंबर, you can alter, you can add to any charge before judgment is pronounced. Subsection 2. Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused. Yes, Kamalji, it can be. Okay. Now, every such alteration or addition shall be read and explained to the accused.
बाई चांस आप चेंज करते हो, वो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और पढ़ के भी सुनाना पड़ेगा. If the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with a trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if altered or added charge had been added to the original charge. अगर चार्ज ऐड करने से या ऑल्टर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल चल सकता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा. सपोज मैंने सपोज एक ग्रीवियस हर्ट का मामला चल रहा है और अब वो मर्डर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हालात तो सेम ही है, बस फर्क यह है कि वो ग्रीवियस हर्ट वाला मर गया, तो अब ट्रायल वैसे ही चलता रहेगा, कोई सारे विटनेसेस वही है, सब कुछ वही है. सो जहां पे एडिशन या ऑल्टर करने से ट्रायल पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही चलेगा, तो आपको ट्रायल रोकने की जरूरत नहीं है. बट अगर चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ट्रायल चल रहा था 304A का, कॉजिंग डेथ बाय रैशनल नेग्लिजेंट एक्ट, पता चला ये तो मर्डर का मामला है, अब तो आप ट्राई भी नहीं कर सकते, अब तो एक्सेशन ट्रायबल हो गया, अब आपको रोकना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा और अब सारे एविडेंसेस भी चेंज हो जाएंगे. तो इसीलिए अगर ऑल्ट्रेशन या एडिशन से जरूरत पड़ती है कि ट्रायल को रोका जाए, तो ट्रायल रोकना पड़ेगा. If the alteration or addition is such that proceeding immediately with the trial, in the opinion of the court, is likely to prejudice the accused or the prosecutor, then the court may direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. या तो नया ट्रायल शुरू करो, और अगर नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार नया ही करो, तो अब ये हो सकता है कि आप उसकी नई कॉपी दे सकते हो, सारे एविडेंसेस दे सकते हो और कह सकते हो जितना हो गया उतना ठीक है, बाकी इतना पार्ट हम बाद में चलाएंगे, उसको आप डेफर कर दो, वो आपकी डिपेंड करेगा केस टू केस. सबसेक्शन 5, if the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution in which previous sanction is necessary. अब बाई चांस ये ऐसा मामला है जो 197 का, फॉर एग्जांपल, जहां पे सैंक्शन की जरूरत है, ऐसे मामलों में the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction has already been obtained for a prosecution on the same facts which were all. अब बाई चांस जब आप ऐड कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, अब जरूरत पड़ गई हमें सैंक्शन की, जो पुराना चल रहा था ट्रायल, उसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ गई, तो आप रोक दोगे जब तक सैंक्शन नहीं आती. तो बाई चांस ऑल्ट्रेशन या एडिशन से कोई ऐसा सेक्शन ऐड हो गया जिसमें सैंक्शन की जरूरत है, तो देन नेचुरली यू विल स्टॉप इट टिल यू ऑब्टेन द सैंक्शन. I hope now everybody is clear on all these aspects. Okay. Now we go on to section 217, which corresponds to section 240. चलिए, whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor, अब नेचुरली जब नया चार्ज लगा दिया मैंने, तो नेचुरली अब सब कुछ चेंज हो गया, तो अब एक्यूज और प्रोसिक्यूटर को क्या बेनिफिट दे सकते हैं? चल रहा है ट्रायल, मैंने रोक दिया, ऑल्टर कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, या ऐड कर दिया, नया लगा दिया, तो इन दैट केस प्रोसिक्यूटर या एक्यूज दोनों पार्टीज में से कुछ अलाउ करेंगे. क्या अलाउ करेंगे? ए, टू रिकॉल और रीसमन and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined earlier, unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine the purpose only for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of service. Okay. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ऐड किया या ऑल्टर किया और ऑलरेडी एविडेंसेस हो चुके हैं
तो अब नेचुरली क्योंकि नए हालात हो गए तो मैं उनको दोबारा बुला सकता हूं. सो रिकॉल ऑफ विटनेसेस. सो आई एम अलाउड टू रिकॉल विटनेसेस. क्यों? क्योंकि नए मामला आ गया. अब वो विटनेस ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई बात नहीं, उनको दोबारा बुला सकते हैं. एक्यूज भी बुला सकता है और प्रोसिक्यूशन भी बुला सकता है, बट सिर्फ उन्हीं मामलों के लिए बुला सकता है. पुराने मामले तो हो चुके, इन्हीं मामलों में उनको बुला सकते हैं. हाँ, पर अगर बाई चांस वो ऐसा उनका एविडेंस है कि उनको अब दोबारा बुला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं ताकि डिले हो जाए या दूसरी पार्टी को तंग करना है, वो अलाउड नहीं है. सो बेसिकली whenever any charge is altered or added, it gives a right to both the parties to ask for recalling the witness for the purpose of getting evidence on the altered matter or the new matter. However, if by recalling the witness I'm only trying to trouble the opposite party or I want to delay the whole process of the trial, then the court may refuse to recall the witness. In other words, I have a right to recall the witness only and only if I feel that the previous evidence of the witness would not suffice to be sufficient in case of an altered or added charge. Okay. We now go on to B part. अब हम आ गए जॉइंडर ऑफ चार्जेस. अगर ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस ना होता तो हर ऑफेंस का सेपरेट ट्रायल होता. मैंने कहा था ना, each charge must be treated separately, each charge must be tried separately. अब ये क्योंकि जॉइंडर आ गया, charges in one transaction may be tried together. ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हर ऑफेंस का अलग ट्रायल होता. पहला जो सेक्शन है 241, वो बेसिकली एक प्रिंसिपल लेइंग सेक्शन है कि कायदे से हर ऑफेंस का ट्रायल अलग होगा, अनलेस के एक्यूज कहे कि जी नहीं नहीं सारे कर लो. So let us see. For every distinct offense, distinct का मतलब क्या होता है? Not identical. Assault is not identical with criminal intimidation, and criminal intimidation is not identical with hurt. यानी कि तीन distinct offense है. For every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge. बहुत क्लियर है, हर ऑफेंस का सेपरेट चार्ज लगेगा. ईच चार्ज मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली. ज्यूरिस्प्रूडेंस. और हर चार्ज कायदे से सेपरेटली ट्राई होगा, प्रोवाइडेड that where the accused person by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together or any number of charges framed against such person. पुराना लॉ ये था कि अगर मेरे खिलाफ एक से ज्यादा चार्ज लग रहे हैं और अगर मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं कि मेरे सारे चार्ज इकट्ठे कर लो, ट्राई, तो मैजिस्ट्रेट सोच सकता है. ये था जनरल लॉ. अब एक्सेप्शन क्या है? सबसेक्शन 2 इज एन एक्सेप्शन. क्या कहता है? नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 243, 242, 243, 244 एंड 246. इनमें जॉइंडर ऑफ चार्जेस दिया गया है, जिसके अंदर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सो अब हमारा पूरा लॉ जॉइंडर ऑफ चार्जेस का 4 सेक्शंस में है, 242, 243, 244 और 246. चलिए अब हम चलते हैं टू दीज 4 सेक्शंस. पहले लेते हैं हम 242.
ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस सेक्शन में, बहुत बार। मोटा मोटा क्या कह रहे हैं, अगर एक ही तरह के ऑफेंसेस एक साल में होते हैं, उनको एक ट्रायल में ला सकते हैं। यानी कि पहले था, सीआरपीसी में था कि अगर मैं सपोज एक चोर हूं, मैंने एक चोरी की, दो चोरी की, तीन चोरी की, चार चोरी की, पांच चोरी की, छह चोरी की एक साल में, तीन का ट्रायल इकट्ठा हो सकता था। अब बीएनएसएस में चेंज हो गया है, अब तीन की जगह पांच चोरियों का ट्रायल एक हो सकता है। सो 3 की जगह अब 5 केसेस हो गए हैं। सो जहां पे 5 केस एज पर द न्यू लॉ एक जैसे हैं, पहला क्वेश्चन उठता है कि एक जैसे का मतलब क्या होता है। सो प्लीज मेंबर, इसके लिए हम सब सेक्शन 2 में आते हैं, सेक्शन 242 के। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। Offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment. अंडर पहला सेम पनिशमेंट, दूसरा सेम सेक्शन, तीसरा चाहे वो बीएनएस का है और चाहे वो स्पेशल या लोकल लॉ का है। क्लियर हो गया? सो अब कोई भी एक ऑफेंस, हमने 5 ऑफेंस एक जैसे किए हैं इन 1 ईयर, तो कायदे से 5 ट्रायल चलने थे, हम उनको क्लब कर सकते हैं एक ट्रायल, थैंक्स टू सेक्शन 242। इसको बैकग्राउंड में रखते अब पढ़ते हैं ये सेक्शन। When a person is accused of more offenses than one of the same kind, what is one of the same kind? जो अभी हमने पढ़ा, committed within a space of 12 months from the first to the last, ये जनवरी टू दिसंबर नहीं है, ये है पहला अगर मैंने ऑफेंस किया से मई में, तो मेरा 5वां ऑफेंस होना चाहिए अगले मई से पहले, यानी अप्रैल तक। तो पहला ऑफेंस मेरा वहां से मेरा मीटर शुरू हो जाएगा, 12 महीने में पहले ऑफेंस है, मेरे 5 ऑफेंसेस उसी तरह के सेम सेक्शन में सेम पनिशमेंट के अगर होते हैं, तो एक मैं क्लब करके एक ट्रायल चला सकता हूं। From the first to the last of such offenses, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding, पहले 3 था अब 5 हो गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इस बार ध्यान रखिए, ये मेंस में बहुत बार मेंस में क्वेश्चन आया है। तो सपोज मैंने 5 केस चीटिंग के किए, तो चारों पांचों का एक ट्रायल हो सकता है, प्रोवाइडेड सेम सेक्शन लगाओ। मैंने 5 केसेस ग्रीवियस हर्ट के किए, सेम सेक्शन लगाए, एक ट्रायल हो सकता है, प्रोवाइडेड सारे 12 महीने के अंदर अंदर हुए। ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड कौन से होते हैं? व्हेन दे आर पनिशेबल, ए विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, बी अंडर द सेम सेक्शन, सी चाहे बीएनएस हो, चाहे लोकल लॉ हो, और चाहे वो स्पेशल लॉ हो। हाउएवर एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 303 corresponds to section 380 रात को चोरी of BNS IPC shall be deemed to be an offense of the same kind of an offense punishable under section 380, यानी कि जो 379 पहला वाला वो 380। अब क्या होता है, चोरी और रात को चोरी है तो चोरी ना, अब सेक्शन तो डिफरेंट हो गए, तो प्रोवाइजो में चोरी जो है वो रात की चोरी को हम सेम ऑफेंस मानते हैं। सो इन अदर वर्ड्स,
जब भी हम 379 जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है अब 303, और दूसरा हम 305 बीएनएस से यूज करें विच कॉरेस्पॉन्ड टू 380 आईपीसी, एक ही ऑफेंस माना जाएगा। सो अगर हम जल्दी से रिवाइज करें, क्या कहता है पहला पॉइंट, अगर 5 ऑफेंसेस 12 महीने में एक जैसे हुए हैं, एक ट्रायल होगा। एक जैसे ऑफेंसेस का मापदंड क्या है? एक ही सजा हो, एक ही सेक्शन हो, एक ही लॉ हो, चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो लोकल लॉ हो, चाहे वो स्पेशल लॉ हो। अगर हम बीएनएस की बात करें तो चोरी के 2 सेक्शंस होते हैं, 379 एंड 380, जो आज के दिन में बन चुके हैं हमारे 303 और 305 बीएनएस। अब चाहे सेक्शन डिफरेंट है और पनिशमेंट्स भी डिफरेंट है, बट इनको हम एक ही ऑफेंस, सिमिलर काइंड का ऑफेंस मानते हैं, इसलिए इसको हम प्रोवाइजो में लेके आए हैं। यस गौरव, इवन इफ द जुरिस्डिक्शन इज द सेम, इज इट डिफरेंट, तब भी अलाउ किया है। देयर आर मेनी हाई कोर्ट जजमेंट्स जहां पे उन्होंने कहा कि बाई चांस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना हो, तब भी है। जहां पे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इसमें देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग, गौरव, देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट जजमेंट्स। मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स से कि क्योंकि इसमें लॉ में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं लिखा, तो अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का अप्लाई करेगा जहां कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जहां एक जैसा ऑफेंस है। और वो ये कहते हैं, मोस्ट अब जो सेटल्ड लॉ है गौरव इस पे, कि अगर ये सारे ऑफेंसेस एक स्टेट में हुए हैं, तो देन जो उन 5 केसेस में जो सबसे सीनियर कोर्ट है, वहां पे 5 ट्राई होंगे। ये सो सेटल लॉ ये है कि एक ही स्टेट में अगर हुए हैं, तो जो उन 5 केसेस में सबसे सीनियर जुरिस्डिक्शन वाला है, वहां होंगे। और अगर दूसरा स्टेट है, तो नेचुरली यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो इट विल नॉट बी फीजिबल। इसीलिए अगर डिफरेंट स्टेट्स हों, तो वी विल कंडक्ट डिफरेंटली। ये लिखा नहीं हुआ, पर ये जजमेंट्स बहुत सारी हैं जिसमें ये चीज क्लियर किया गया। निधि पहले तो 3 था, पहले 3 था अब 5 हो गया, क्योंकि टाइम बचता है ना, एक ही जैसे ऑफेंसेस है, मोडस ऑपरेंडी एक है, तो नेचुरली एक कोर्ट जल्दी चलाएगा, 5 इकट्ठे चला लेगा, इसलिए होता। ओके, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस वेरी, अब आते हैं अगला। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, जब हम कहते हैं सेम ऑफेंस, एक चीज और, ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, इसमें क्या क्या इसके मापदंड है? पहला, सेम पनिशमेंट, दूसरा सेम सेक्शन, तीसरा सेम लॉ, यानी बीएनएस है तो सारे बीएनएस होना चाहिए। चौथा एक और पॉइंट है कि अगर बाई चांस इनका एक में अटेम्प्ट है और यहां दूसरे के अंदर, तो यहां जहां अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट को भी हम सेम लॉ मानेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 3 केस किए चोरी के, और चौथे में मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं जैसे ही वहां गया, लोगों की जाग खुल गई, मैं भाग गया। अब ये क्योंकि अटेम्प्ट जुड़ गया है, क्या ये डिफरेंट केस हो गया? नहीं। सो एक और प्रोवाइजो है कि अटेम्प्ट भी एक्ट ही माना जाएगा, यानी कि अगर 3 केस 379 के और एक रेड विद 511 है, तो भी वो सेम काइंड माना जाएगा। गौरव, यू कैन ऑलवेज फाइट इट आउट, बिकॉज सी इसमें जहां नहीं लिखा होता ना, वहां वकीलों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जसप्रीत, अगर बाई चांस कोई जेएमआईसी भी तो सीनियर होते हैं ना, एडिशनल सीजेएम है, वो भी जेएमआईसी है, सीजेएम भी जेएमआईसी है, ऐसा होता है। या गौरव, एक्चुअली क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, 5 केस होंगे तो 5 बार मुझे पैसे मिलेंगे। अगर सारे एक ही ट्रायल में हो गए, मेरे तो पैसे गए। तो डिफेंस लॉयर कभी एग्री, दे आर नेवर हैप्पी विद दिस सेक्शन, बट कोर्ट को चाहिए वो कहे, कोर्ट शुड बी पुटिंग दिस फुट डाउन।
कोर्ट की जिम्मेवारी है। ओके, टाइम इज अप। हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू ऑल टुमारो। आई होप कल तक ये ठीक हो जाएगा इनका। विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। हाँ, कोई बात नहीं गौरव, अब हो सकता है कि आधों में कन्विक्ट हो जाए, आधों में छूट जाए, 2 में कन्विक्ट हो गया, 3 में एक्विट हो गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो 2 में कन्विक्शन हो जाएगी मेरी। अब उसमें ये एक फायदा ये होता है कि जब इकट्ठे चलते हैं ना, उनमें कंकरेंट हो जाता है, अनलेस कि कोई बहुत सीरियस ऑफेंस हो। तो नॉर्मली कोर्ट की क्या होता है कि चल यार ये 3 में तो चलो छूट गया, 2 में कंकरेंट कर देते हैं, वो कंकरेंट कर देते हैं, ये फायदा हो जाता है। चलिए, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।